Today we'll be starting with chapter number 3 of CRPC 1973. Chapter number 1 from section 1 to 5 related to preliminary we had already discussed, and chapter number 2 which was related to, चलिए कंटिन्यू करते हैं. Chapter 2 was related to the constitution of criminal codes from section 6 to section 25A. Now we are starting with chapter number 3, which refers to the powers of the court, which allot the power to the courts. It is from section 26 to section 35, and it is actually a easy chapter, so we'll try to complete the chapter today itself. Section 26. Here we do have codes by which offenses are triable. Subject to the other provisions of this code, any offense under the Indian Penal Code 45 of 1860 may be tried by the High Court, the Court of Session, any other court by which such offense is shown in the first schedule. It means हमारे लिए जो important चीज है ध्यान रखने की वो क्या है कि शेड्यूल फर्स्ट में हमें क्या टेबल प्रोवाइडेड है वो हमें याद करनी है. सीआरपीसी में शेड्यूल्स गिवन है, उसमें शेड्यूल फर्स्ट में एक टेबल है जिसमें हर ऑफेंस के लिए मेंशन है that which offense is cognizable, which is non-cognizable, which offense is bailable, which is non-bailable, and which offense has to be tried by which court. That has been mentioned in schedule first. तो शेड्यूल फर्स्ट को आप अच्छी तरह से पढ़ें, उसको रेडी करें, और उसके अदरवाइज तो यहाँ पे दे ही रखा है, that is the offenses may be tried by High Court, Court of Session, and by the court which have been mentioned in schedule first. Provided that any offense under section 376, section 376A, 376B, 376C, 376D, 376E of the Indian Penal Code 45 of 1860 shall be tried as far as practicable by a court presided over by a woman. So obviously these are related to the offenses against the women. So it is, if it is practicable and so far as possible, the it should be triable by a court which has to be presided over by a woman judge. After that, any offense under any other law shall, when any court is mentioned in this behalf in such law, be tried by such court, and when no court is so mentioned, may be tried by the High Court or any other court by which such offense is shown in the first schedule to be triable. जो क्लॉज बी है वो क्या कहता है, कुछ अदर ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके लिए हमने स्पेशल लॉ बना रखे हैं. आपको याद होगा स्पेशल लॉ क्या होता है. स्पेशल लॉ लाइक एनआई एक्ट, SC/ST एक्ट, जुवेनाइल एक्ट, तो उनके लिए हमने एक्ट अलग बनाए हैं और उन्हीं एक्ट के अकॉर्डिंगली उनके लिए कोर्ट्स भी अलग एस्टेब्लिश्ड हैं. तो उनमें मेंशन्ड है दैट सच काइंड ऑफ केसेस विल बी ट्राइड बाय अ पर्टिकुलर कोर्ट्स एस्टेब्लिश्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस. तो वो फॉलो होगा. बट वो उनमें भी अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है या एक्ट साइलेंट है तो अगेन या तो हाई कोर्ट या फिर द कोर्ट विच हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय शेड्यूल फर्स्ट. सो सेक्शन 26 में बस इतना ही है कि कौन सी कोर्ट केसेस को ट्राई कर सकती है. सो एनी कोर्ट कैन ट्राई द केस विच इज अ हाई कोर्ट और विच इज अ कोर्ट ऑफ सेशन और विच हैव बीन मेंशन्ड अंडर शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द CRPC. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास में आता है सेक्शन 27, जुरिस्डिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल्स. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये अराइज हो जाता है कि हम जुवेनाइल किसे कंसीडर करेंगे. सो इट हैज बीन स्पेसिफाइड अंडर हियर आल्सो एंड हैज बीन स्पेसिफाइड अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015. तो आप लोगों को पता ही है जैसे कि
2015 में इसके लिए सेपरेट एक्ट बना दिए गए, उससे पहले सारे प्रोविजंस आईपीसी की ही एप्लीकेबल होते थे। सो एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन क्या आ गया, कोई ऐसा पनिशमेंट जो कि बहुत ही कोई ऐसा ऑफेंस जो कि बहुत ही सीवियर है, बहुत हीनियस है, जो पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो उसे तो हम इसकी कैटेगरी में नहीं लेंगे। अदरवाइज committed by any person who at the date when he appears or is brought before the court is under the age of 16 years may be tried by the court of a chief judicial magistrate or by any court especially empowered under the Children Act 1960। अभी Children Act 1960 की जगह तो अंडरस्टूड है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 हो जाएगा, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो ये सेंटेंस लिखा ही इसलिए जाता है कि जब भी कभी कोई चेंजेस आ जाए तो उसको अडॉप्ट कर लिया जाए। प्रोवाइडिंग फॉर द ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जुवेनाइल के लिए हमने लिमिटेशन क्या ली है, द पर्सन अंडर द एज ऑफ 16 years विल बी कंसिडर्ड टू बी अ जुवेनाइल। और ये एज ऑफ 16 years उसकी कब तक काउंट करनी है या किस लिमिट तक लेनी है हमें, दैट इज एनी पर्सन हु at the date when he appears or is brought before the court is under the age of 16। यानी कि जब उसने क्राइम किया था तब तो वो अंडर एज था ही, लेकिन जब वो कोर्ट में लाया जाता है तब भी ही शुड बी बिलो द एज ऑफ 16 years। जब वो पकड़ा गया, सपोज ऑफेंस करके भाग गया और जब पकड़ा गया तब तक वो ओवर एज हो चुका था, तो फिर वो इस जुवेनाइल कोर्ट में या जुवेनाइल एक्ट के अकॉर्डिंगली वो ट्रायबल नहीं होगा। तो ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि जब वो कोर्ट में अपीयर होता है या जब वो अरेस्ट किया जाता है तब वो जुवेनाइल होना चाहिए। दिस इज जस्ट मेंशन इन सेक्शन 27। तो सेक्शन 26 था आपका रिलेटेड टू द कोर्ट्स बाय व्हिच द ऑफेंसेस आर ट्राइबल, एंड सेक्शन 27 इज रिलेटेड टू द जुरिस्डिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल्स। तो इसके लिए हमने मेन ध्यान क्या रखना है, दैट इज इट शुड बी ट्राइड by the chief judicial magistrate, है ना, the court of chief judicial magistrate होना चाहिए, और by the any other court which have been specially empowered। तो specially empowered तो अलग से इनके लिए ट्रिब्यूनल्स बनती ही हैं जुवेनाइल्स के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 27। सेक्शन 28 क्या कहता है उसे भी देख लें एक बार। sentences which high courts and sessions judge may pass। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आया है, 26 27 ठीक है, बट नॉर्मल वन, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। 28 दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। इसमें एक टेबल काइंड ऑफ आप बना सकते हैं और आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से कोर्ट्स कितना पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकते हैं। 28 29 ये एंड 30 तीनों इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हाई कोर्ट और सेशंस जज की बात हो रही है। अ हाई कोर्ट मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। इसका मतलब डेथ पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इवन एनी अदर पनिशमेंट विच हैव बीन ऑथराइज्ड बाय लॉ। तो लॉ में कितना, देखिए माइक अगर किसी का इनेबल है तो उसको स्विच ऑफ कर दीजिए जिससे कि वॉइस क्लियर आ सके आप लोगों को। कितना सेंटेंस हो सकता है या किस किस तरह के पनिशमेंट्स होते हैं वो हमें कहाँ गिवन है, आईपीसी में गिवन है। आईपीसी में हमें गिवन है कि पनिशमेंट कितने तरह के हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो आईपीसी का है दैट इज रिलेटेड टू द पनिशमेंट्स, उसमें टोटल मिला के हमें 5 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट स्पेसिफाई किए हुए हैं, ठीक है। और हाई कोर्ट के पास में क्या पावर है कि हाई कोर्ट कोई भी पनिशमेंट दे सकता है जो कि हमें लॉ में स्पेसिफाइड है। तो लॉ में अगर माइक किसी का इनेबल है तो माइक आप ऑफ कर दीजिए, गिवन है। आईपीसी चैप्टर 3 सेक्शन 53 specifies the punishments। There are 5 kinds of punishments defined in that,
और वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के पास में कंप्लीट पावर है, वो किसी भी तरह का पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकते हैं जो कि लॉ में स्पेसिफाइड है। इसके बाद में आता है सेशंस, कोर्ट ऑफ सेशंस के लिए। देखें क्या है, अ सेशंस जज और एडिशनल सेशंस जज। ठीक है, हाँ, कितने तरह के होते हैं वो सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेशन जज होता है, उसके साथ में एडिशनल सेशंस जज, असिस्टेंट सेशन जज, देन हमारे पास में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, उनसे अबव चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो सारे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में। तो अ सेशंस जज और एडिशनल सेशंस जज may pass any sentence again authorized by law, but any sentence of death passed, तो हाई कोर्ट को तो किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन सेशंस जज के लिए क्या है, एनी सेंटेंस ऑफ डेथ passed by any such judge shall be subject to the confirmation by the high court। अवॉर्ड तो ये भी कर सकते हैं किसी भी तरह का पनिशमेंट ऑथराइज्ड बाय लॉ, लेकिन अगर डेथ सेंटेंस देते हैं तो एक बार हाई कोर्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा, या कंसल्ट नहीं, कंफर्म करवाना पड़ेगा दैट इन दिस पर्टिकुलर situations and the circumstance of cases we are awarding the death punishment। ठीक है, then subsection number 3, an assistant session judge may pass any sentence authorized by law except a sentence of death। असिस्टेंट सेशन जज के पास में सेंटेंस ऑफ डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अवॉर्ड करने का राइट और पावर नहीं है, और इवन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 10 years। इसका क्या मतलब निकलता है, ये इनडायरेक्ट में लिखा है बट इसका मतलब क्या निकलता है, दैट इज एन असिस्टेंट सेशंस जज मे अवॉर्ड अ पनिशमेंट अप टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years। बिकॉज लिख दिया, ना तो वो डेथ पनिशमेंट दे सकते हैं, ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, इवन 10 years से एक्सीड करता हुआ भी नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब है 10 years तक का दे सकते हैं। सो दिस इज सेक्शन नंबर 28। हाई कोर्ट में अवॉर्ड एनी पनिशमेंट, सेशन जज एंड एडिशनल सेशंस जज may award any punishment, but that death punishment should be confirmed with the high court, and assistant sessions judge may award only the punishment of imprisonment up to the 10 years। Let us come to section 29, statement sentences which magistrate may pass। तो अब आ रही है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का jurisdiction। The court of a chief judicial magistrate may pass any sentence authorized by law except a sentence of death, or of imprisonment for life, or imprisonment for a term exceeding 7 years। तो अगेन ये हमें इनडायरेक्ट में लिखा है, इसको सिंपल वॉइस में हम कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, दैट इज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे अवॉर्ड